Good morning everyone. So today in this video we are going to study about carbon and its compound. In this particular video we are going to study about some points about carbon and its allotrope. So let's get started. So our first topic is carbon. So first we will get to know some points about carbon. So here the first point is carbon is an element which is represented by C. It is a non-metal and the word carbon is derived from the Latin word carbo, which means coal. The amount of carbon present on Earth crust and atmosphere is very small. The Earth crust contains 0.02% carbon in the form of mineral. The Earth atmosphere has only 0.03% of carbon in the form of carbon dioxide gas. Carbon is present in all living things, plants and animals. In these all points, what does it says? कार्बन एक एलिमेंट है जिसको हम सी लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं. ये एक नॉन मेटल है. जो वर्ड कार्बन है वो एक लैटिन वर्ड कार्बो से मिल के बना है जिसका मतलब कोल होता है. जो कार्बन है उसका अमाउंट हालांकि हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर और क्रस्ट में काफ़ी कम है, बट जो अर्थ क्रस्ट है उसमें 0.02% कार्बन प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ मिनरल जैसे कि कार्बोनेट, और अर्थ एटमॉस्फेयर में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में. कार्बन हालांकि काफ़ी कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसीलिए ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल सभी में मिलता है. नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू स्टडी इज अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड. सो द थिंग व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड इज, so all compound or thing which is made up of carbon, okay, the thing which is made up of carbon is called organic compound. वो हर चीज़ जो कार्बन से बनी हुई होती है उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं. Now here one question arises that how can we test the presence of carbon? So the thing is, whenever you burn anything in air and if it gives CO2 means carbon dioxide and that turn lime water, this is lime water milky and nothing left behind, this shows that the substance or compound is made up of carbon atom. कभी भी किसी चीज़ को आप जलाते हो और वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है, लाइम वाटर को मिल्की में टर्न करता है और कुछ भी नहीं बचता जलने के बाद, वो ये शो करता है कि वो चीज़ किस चीज़ से बनी है? कार्बन से बनी है. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ some more point about carbon. So let's get started. So the atomic number of carbon is 6 and its electronic configuration is 2 and 4, which means K cell और L cell. K cell में 2 होता है इलेक्ट्रॉन एंड L cell में 4 होता है. मीन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, so here it is saying that atomic number of carbon is 6 and its electronic configuration is 2 and 4, which shows that 4 electron in its outermost shell, means it can either lose or gain electrons to achieve inert gas configuration. Carbon atom is very small, due to which its outermost electron are strongly held by the nucleus. Carbon atom काफ़ी small होता है जिसकी वजह से इसका जो outermost electron है वो काफ़ी तेज़ी से उसके न्यूक्लियस से बंधा होता है. क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रॉन गेन और लूज़ कर सकता है, इसकी वजह से इसके पास जो बॉन्ड बनता है दैट इज़ कोवलेंट बॉन्ड. और कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंट भी है, मतलब इसकी वैलेंसी क्या होती है? 4 होती है. विच मीन्स कार्बन जो है उसके पास 4 बॉन्ड आप ऐसे देखोगे, इस 4 बॉन्ड से आपके हाइड्रोजन लगे हुए होते हैं. ठीक है, और कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ये या तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है. तो ये इलेक्ट्रॉन गेन या लूज़ करके बॉन्ड फॉर्म करता है. वो बॉन्ड कौन सा होता है? कोवलेंट बॉन्ड होता है. You can see the carbon is represented by carbon and along with the 4 bonds. Now our next point is how carbon form long chains. This question arises many times, that how carbon form chain. So here it says that carbon has self combination property and because of this it can form long chain. क्योंकि कार्बन के पास खुद को कंबाइन करने की, अपने आपस में ये सारे कंबाइन कर सकते हैं आपस में खुद को, तो उनके पास सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी होती है जिसके वजह से वो लॉन्ग लॉन्ग चेन्स ब्रांच में या स्ट्रेट चेन फॉर्म कर पाते हैं. और हर कार्बन एटम जो है वो एक दूसरे से काफ़ी ज़ोर से बंधा हुआ होता है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन देम. Okay, and one more thing that you have to know, that carbon occur in free state also and in combined state also.
फ्री स्टेट में इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट एंड कंबाइंड स्टेट में इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड. Now the next topic that you have to study is allotrope of carbon. So the various physical form in which an element can exist are called allotrope of element. तो allotrope of carbon जानने से पहले ये जान लेते हैं कि allotrope का मतलब क्या होता है. जब कोई भी एलिमेंट अलग अलग फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है उसको हम उसका एलोट्रॉप कहते हैं. और बात करें अगर कार्बन की, तो कार्बन जो है वो 3 सॉलिड फॉर्म ऑफ एलोट्रॉप उसके पाए जाते हैं. ठीक है, फर्स्ट वन इज़ डायमंड, सेकेंड वन इज़ ग्राफाइट, थर्ड वन इज़ बकमिनिस्टर फुलरेंस. मीन्स व्हाट, देर आर 3 एलोट्रॉप्स. Avoid my handwriting. 3 allotropes of carbon. First one is diamond, second one is graphite, and third one is Buckminster fullerene. Now the next thing we will study is, we will deal each allotrope of carbon one by one. So let's get started. So first we'll study about diamond, which is an allotrope of carbon. So diamond is colorless, transparent substance having extraordinary brilliance. It is quite heavy and hard. It is hardest natural substance to be known. It do not conduct electricity because it has no free electrons to form bond. It can burn on strong heating and give CO2 and nothing left behind, and also can turn lime water milky. It is represented by C. Its crystal has tetrahedral arrangement of carbon atom. It has high density and melting point more than 3500 degrees Celsius. इसका मतलब कि डायमंड जो है वो कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है जिसके पास काफ़ी ज़्यादा चमक होती है. ये हैवी और हार्ड होता है. ये सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस में से जाना जाता है. और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है क्योंकि इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं ताकि वो बॉन्ड फॉर्मेशन कर सके. बॉन्ड फॉर्मेशन करने का अगर कैपेसिटी होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा. और स्ट्रॉन्ग हीट करने पे ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है और कुछ भी नहीं बचता उसके अलावा. और ये कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर को मिल्की कन्वर्ट कर सकता है, विच शोज़ दैट इट इज़ मेड अप ऑफ कार्बन. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से. और इसके क्रिस्टल्स के पास टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है कार्बन एटम का. इसकी डेंसिटी काफ़ी हाई होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होती है. आई थिंक मोर देन 3500 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा. Now next thing that we have to study is about the uses of diamond. So let's see what's the point says. It can be used for cutting instruments like glass cutter, cutting marble, rock drilling equipments. Diamond dyes are used for drawing thin wire like tungsten filament of an electric bulb. Diamond can be used to make jewelry. Sharp-edged diamonds are used by eye surgeon as a tool to remove eye cataract with a great precision. And one more thing that you have to note down is, diamond can be made artificially by subjecting pure carbon to very high pressure and temperature, and those are called synthetic diamond. Okay, so what we have studied कि diamond का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं. So the first one is a glass cutter, cutting instrument के तौर पे. Okay, मार्बल कट करने के लिए, रॉक ड्रिलिंग इक्विपमेंट के तौर पे. और डायमंड डाइज का इस्तेमाल हम इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर टंगस्टन ड्रॉ करने के लिए यूज़ करते हैं. ज्वेलरी बनाने के लिए भी डायमंड का इस्तेमाल करते हैं. और जो शार्प एज डायमंड होते हैं उसको आई सर्जन कैटरैक्ट रिमूव करने के लिए करते हैं. डायमंड को हम आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं जब हम प्योर कार्बन को काफ़ी हाई प्रेशर टेम्परेचर दे के कन्वर्ट कर सकते हैं. मतलब किसी भी तरीके से डायमंड को अगर हम प्योर कार्बन जो है उसको हम हाई प्रेशर और टेम्परेचर के साथ ट्रीट करें तो हम डायमंड आर्टिफिशियल डायमंड बना सकते हैं जिसको हम सिंथेटिक डायमंड के नाम से भी जानते हैं. सो आई थिंक आपको डायमंड एंड डायमंड का यूज़ क्लियर हो गया होगा. अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ ग्रेफाइट. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ग्रेफाइट इज़ ग्रेइश ब्लैक ओपैक सब्सटेंस, इजंट इट. ये ग्रे ब्लैक ओपैक सब्सटेंस होता है बट डायमंड से थोड़ा हल्का होता है. ये सॉफ्ट और स्लिपरी होता है टच वाइज. ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का रीज़न क्या है वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी. और एज़ यूजुअल जब आप, क्योंकि पता है कि ये कार्बन का एलोट्रॉप है, तो जब आप इसको जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा जो कि लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट कर देगा. इसको भी हम लेटर सी से ही रिप्रेजेंट करते हैं. और जैसा कि मैंने अभी आपको बोला था कि मैं ये बताऊँगी कि ये क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो यहाँ पर रीज़न है क्योंकि इसके पास कह रहा है कि इसके जो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यूज़ हो रहे होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में. और एक ऐसा बॉन्ड होता है, एक ऐसा एटम होता है जो खाली होता है.
ठीक है, तो वो बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है किसी के साथ, तो इस वजह से ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि यहाँ लिखा है इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज ओनली 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच कार्बन एटम इज यूज्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन, सो द फोर्थ एटम इज फ्री टू मूव एंड कैन फॉर्म बॉन्ड विद अदर्स, सो दैट्स वाई इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. And one more point that you have to study is the various layer of carbon atom in graphite are held together by a weak, that will be weak van der Waals forces. Because of this they can slide over one another. weak van der Waals forces के वजह से जो कार्बन एटम है वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ओवर कर सकते हैं, और डायमंड की तरह ही इसका भी बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है. तो ये कुछ ग्रेफाइट के बारे में पॉइंट था. सो नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट द यूजेस ऑफ ग्रेफाइट. Graphite can be used as lubricant for the fast moving part of machinery. It is used for making carbon electrode or graphite electrode in dry cell. It is used for making core of our pencils called pencil slate and ब्लैक पेंट्स, जिसका मतलब ये है कि ग्रेफाइट का इस्तेमाल हम ल्यूब्रिकेंट के तौर पे कर सकते हैं जो भी फास्ट मूविंग पार्ट होते हैं मशीन्स के उसमें, और इसका इस्तेमाल हम कार्बन इलेक्ट्रोड या ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के तौर पे करते हैं ड्राई सेल्स में, और इसका इस्तेमाल हम पेंसिल्स के लिड या फिर ब्लैक पेंट्स बनाने के लिए भी करते हैं. तो आई थिंक आपको ग्रेफाइट का यूज़ समझ में आ गया होगा. अब हम बढ़ेंगे हमारे थर्ड एलोट्रॉप की तरफ कार्बन के, दैट इज़ बकमिंस्टर फुलरेंस. So here we go. So the first point is it is an allotrope of carbon. ये हम सभी को पता है. It contain cluster of 60 carbon atom. This is the most important point that you have to know. 60 carbon atom से ये बना हुआ है और ये सारे इकट्ठे ऐसे जुड़े हुए हैं कि एक spherical molecule like structure बनाते हैं जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, isn't it? इसके बाद यहाँ पे कह रहा है क्योंकि इसके पास 60 कार्बन एटम होता है इसलिए इसका फॉर्मूला होता है C60. C60 is the formula of Buckminster Fullerene. How many atom it contains? 60 atom of carbon. Okay. So here it says that it is a football shaped molecule which are arranged in interlocking hexagonal and pentagonal ring of carbon atom. जो कार्बन के एटम है वो हेक्सागोनल और पेंटागोनल स्ट्रक्चर में अरेंज्ड हैं और बिल्कुल एक फुटबॉल का शेप देते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे होगे. दिस एलोट्रॉप वॉज नेम्ड बकमिंस्टर फुलरेंस आफ्टर एन अमेरिकन आर्किटेक्ट मिनिस्टर फुलर. इनके नाम पे पड़ा था क्योंकि इन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया था, इनके द्वारा एक हॉल डोम शेप का इन्होंने डिज़ाइन किया था, वो बिल्कुल इसी तरीके से था, तो इसलिए इनके नाम पे ये इसका शेप जो है वो ये एलोट्रॉप का नाम पड़ गया. और ये रूम टेम्परेचर पे डार्क और सॉलिड रहता है. ये ना ही ज़्यादा हार्ड ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, और ये भी सिर्फ कार्बन से बना है. तो ये थे कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन और उनके फंक्शंस. आई होप आपको ये सारे वीडियोस के पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे. ये थे कुछ पॉइंट. आई होप कि आपको ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा कि कार्बन के कुछ पॉइंट्स क्या क्या हैं, कार्बन क्या होता है, और उसके एलोट्रॉप्स के बारे में आपने जान लिया होगा कि कौन कौन से एलोट्रॉप्स होते हैं और उनके बारे में क्या क्या पॉइंट्स क्लियर किए. तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा, कुछ समझ में आया तो प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज़ सौम्या आर सिंह ऑफिशियल. थैंक यू.